حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور رب العالمین ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں موضوع ہے غفلت کی زندگی کب تک۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین جو کہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، جو اپنے بندوں سے حد درجہ محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین جو کہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، جو اپنے بندوں سے حد درجہ محبت کرتا ہے، جو اپنے بندوں پر حد درجہ مہربان ہے، اس اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً انبیاء اکرام بھیجے، اور آخری میں جو نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بڑے ہی بہترین انداز میں وہ ساری باتیں آپ نے ہمیں بتائیں جن پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہے، اور وہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلائی گئیں جن باتوں کو کرنے سے ہماری آخرت کو نقصان پہنچتا ہے۔ چنانچہ کتاب پاک کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام انسانوں کو جگہ جگہ پر اس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ ہم اور آپ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے حساب و کتاب کی فکر کریں۔ چنانچہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ پر غور کریں، اللہ رب العالمین نے کتنے عجیب انداز میں ہماری حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر کہتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ منہ موڑ رہے ہیں، اور ان کے دل اللہ رب العالمین کے جانب سے حساب کے معاملے سے غافل ہیں۔ ذرا غور کریں اس آیت کریمہ پر۔ اس آیت کریمہ کا ایک ایک لفظ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اس پہ غور کیا جائے۔ اس آیت کریمہ کا ایک ایک لفظ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اس پہ غور کیا جائے، اس کی فکر کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے؟ یہ ہم ہی لوگ ہیں۔ ہمارے ہی حساب کی بات اس پاک کتاب میں کی گئی ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ منہ موڑ رہے ہیں اور ان کے دل حساب کے معاملے سے اللہ رب العالمین کی جانب سے غافل ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی شام ہمارے حساب کا وقت ہو سکتا ہے کہ آج کی شام ہمارے حساب کا وقت ہو سکتا ہے آج کا سورج ڈھلنے سے پہلے، آج کی سورج ڈوبنے سے پہلے ہماری حساب کی گھڑی قریب ہو۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم۔ یہ دو آیتیں ہمیشہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے
कि हमारे हिसाब की घड़ी करीब है, कभी भी आ सकती है। हम और आप गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह का जिक्र जब सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते। कुरान की आयतें हमारे सामने तिलावत की जाती हैं, कुरान की आयतें हमारे सामने पढ़ी जाती हैं, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हमें सुनाए जाते हैं, फिर भी हम हंस रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं। और जहां तक दुनिया की बातें हैं, उन मामलात में इतने सीरियस हैं, इतने संजीदा हैं कि हम और आप अपने छोटे से छोटे नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर कहा कि यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, कि दुनिया के जो ज़ाहिरी मामलात हैं हम और आप उसकी अच्छी जानकारी रखते हैं। अल्लाह कहता है कि दुनिया के जो ज़ाहिरी मामलात हैं हम और आप उसकी अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन आखिरत से हम और आप गफलत में हैं, हमें आखिरत की फिक्र नहीं है। इस आयत करीमा को बयान करने के बाद, इस आयत करीमा को बयान करने के बाद इमामुल मुफस्सिरीन इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इन्ना कसीरम मिनन नासि लैसा लहुम इल्मुन इल्ला बिद्दुनिया, लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको दुनिया के सिवा कुछ भी मालूम नहीं है। फहुम फीहा हुज़्ज़ाकुन अज़किया, दुनिया के मामले में वो बहुत ही ज्यादा मंझे हुए, बहुत ही ज्यादा चालाक हैं, सब जानते हैं। वहुम गाफिलून अन उमूरिद्दीन, लेकिन दीन के मामला से पूरे तौर पर गफलत में पड़े हुए होते हैं। वमा यनफअहुम फी दारिल आखिरा, और ऐसी चीजें जो आखिरत के दिन उन्हें काम आ सकती हैं उन्हें उनका इल्म नहीं है। कान्ना अहदहुम मुगफ़्फ़लुन ला अक़ल लह, दीन के मामले में जब आप उनसे बात करेंगे तो ऐसे लगता है जैसे उनके अकल पे ताले पड़े हुए हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसी तरीके से इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की कसम कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इल्म दुनियावी मामलात में इतना ज्यादा है कि अगर आप उनके उंगली पर सोने का सिक्का रख दें तो सोने का सिक्का अपने उंगली पर लेकर बता देगा कि इसका वजन कितना है और ये कितने कैरेट का है, ये नकली है कि असली है। लेकिन जब आप उसी आदमी से दीन के मामले में पूछेंगे, नमाज का तरीका पूछेंगे, तो वो उसे बता नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान के सिलसिले में इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह, जो कि तकरीबन आज से 1200 साल पहले के आलिम हैं, उन्होंने ये तज्जिया किया था कि लोगों का हाल ये है कि दुनियावी मामलात में वो इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि सोने का सिक्का अपने उंगली पर लेकर बता देगा कि इसका वजन कितना है और ये कितने कैरेट का है, ये असली है कि नकली है। लेकिन जब आप उसी आदमी से दीन के मामले में पूछेंगे, नमाज का तरीका पूछेंगे, तो वो उसे बता नहीं सकता है। अब आप बताइए कि जब ये आज से तकरीबन 1200 साल पहले लोगों का ये हाल था तो आज उनका क्या हाल हुआ होगा। आज से 1200 साल पहले का यह हाल था तो आज उनका क्या हाल हुआ होगा। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, ये दुनिया जिसे फना होना है, जिसे तबाह बर्बाद होना है, और इंसान इसमें इतना ज्यादा मगन, और आखिरत जिसमें उसे हमेशा रहना है, और इंसान उससे इतना ज्यादा गाफिल। इन्हीं हकाइक को सामने रखते हुए हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अजिबतु मिन सलासा, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अजिबतु मिन सलासा, 3 किस्म के आदमी ऐसे हैं जिन्हें देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मुझे तरस होता है, मुझे ताज्जुब होता है 3 किस्म के आदमियों को देख करके। बहुत गौर से सुनेगा। पहला आदमी मुअम्मिल दुनिया वल मौत यतलुबु, एक वो शख्स जो दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है, दुनिया की उम्मीदों में डूबा हुआ है, दुनिया के ख्वाहिशात के पीछे पड़ा हुआ है और उसके पीछे मौत है। यही हकीकत है। एक इंसान है वो दुनिया के पीछे है और उसके पीछे मौत है। इंसान की ख्वाहिश है कमाऊं, घर बनाऊं, लेकिन उनको पता नहीं है, हो सकता है 10-15 साल की ख्वाहिश से जो घर वो तामीर करेगा, बनने के बाद वो उसमें दाखिल हो सकेगा भी कि नहीं हो सकेगा। अरे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी उम्मीद बनाई, जिन्होंने अपनी जिंदगी की बड़ी से बड़ी उम्मीद बनाई कि अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीदें,
खरीदने के बाद वो उसमें सवार ना हो सके। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने तिजारत के बड़े बड़े सपने देखे, जब उन्होंने अपनी तिजारत संभाली तो मौत उनके करीब आ गई और मौत उन्हें लेकर चली गई। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ऐसे शख्स पर मुझे ताज्जुब होता है। आगे फरमाते हैं वज़ाहिकुम बिमिल्इ फ़ीहि ला यदरी अरब्बुहु राज़िन अन्हु अम ग़ज़बान। दूसरा वो शख्स जो किसी महफिल में कह लगाता है, मुंह भरकर हंसता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि जब वो खुशी मना रहा होता है, किसी खुशी महफिल में होता है, तो उस वक्त उसका रब उससे नाराज होता है। हम कितने नादान हैं, हम कितने अहमक हैं कि हम और आप जिस महफिल में खुशी मना रहे होते हैं, कह लगा रहे होते हैं, उस वक्त हमारा रब हमसे नाराज होता है। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ऐसे शख्स पर मुझे ताज्जुब होता है। और आगे चलिए, तीसरा वो आदमी जिस पर हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ताज्जुब का इजहार किया और कहा वगाफिलुन लैसा बिमगफूलिन अन्हु। तीसरा वो आदमी जो गफलत की जिंदगी गुजार रहा है, तीसरा वो आदमी जो गफलत की जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन उसके बारे में गफलत नहीं बरती जा रही है, उसके बारे में जो कुछ होना है वो होता ही जा रहा है। वो गफलत में पड़ा हुआ है, तकदीर का लिखा उसके साथ हो रहा है। वो गफलत में पड़ा हुआ है, कब्र के करीब होते जा रहा है। वो गफलत में पड़ा हुआ है, गुनाह पे गुनाह करते जा रहा है, लेकिन उसकी अजाब की तैयारियां चल रही हैं। वो गफलत में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बारे में गफलत नहीं बरती जा रही है। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कि ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमल फसौफ यअलमून, कि ऐ नबी आप इन्हें इनका हाल पर छोड़ दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी से कहता है कि ऐ नबी आप इन्हें इनके हाल पर छोड़ दीजिए। याकुलू व यतमत्तउ, वह खूब खाएंगे, खूब मज़े करते रहेंगे। व युल्हिहिमुल अमलु, और आगे की बड़ी बड़ी उम्मीदें उन्हें गफलत में डाली हुई होंगी। फसौफ यअलमून, और अनकरीब वो जान लेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए था और वो क्या कर रहे थे। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन पर गौर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन पर गौर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों को किस तरीके से झंझोड़ा। सबसे पहले ये बताया गया कि तुम्हारे हिसाब का वक्त करीब आ चुका है और तुम गफलत में पड़े हुए हो। फिर इस बात की तंबीह की गई कि खाना पीना, ये गफलत में पड़े रहना कुछ दिनों के लिए है, बाद में बड़ी मुसीबतें इंतजार कर रही हैं। इस आयत करीमा पर गौर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने अजीब अंदाज में बंदों को अपनी तरफ बुलाता है। अल्लाह कहता है कुरान हकीम के अंदर कि या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा सच्चा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा सच्चा है। फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा सच्चा है कि मौत आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा सच्चा है कि कब्र के अंदर अज़ाब या नईम से तुम्हें सामना करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा सच्चा है कि तुम कब्रों से उठाए जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा सच्चा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे आमाल का हिसाब लेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा सच्चा है कि ये दुनिया फना होगी और आखिरत हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहेगी। फला तग़ुर्रन्नकुम, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे। गौर करें इन कलिमात पर। अल्लाह कहता है फला तग़ुर्रन्नकुम, तुम्हें ये दुनिया की जिंदगी ये तुम्हें धोखे में ना डाल दे। क्या अल हयात दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे। आखिरत, जन्नत, जहन्नम से छुटकारा, उसके लिए कितने बड़े बड़े मकासद हैं। नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, ईमान है, अल्लाह ताला की अहकामात की पाबंदी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियों से दूर रहना। और ये दुनिया की ज़िंदगी जो कि ख़त्म होने वाली है, जिसकी हर लज्जत के अंदर किसी न किसी तरीके का नुक्स और कमी है, उसके लिए मेहनतें, मशक्क़तें, गुर्बतें बर्दाश्त करना, सारी चीज़ें, और इंसान इसके पीछे
पड़ा हुआ है, और जो हकीकत है आदमी उसे बिल्कुल भुला बैठा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी की तरफ याद दहानी कराता है और कहता है कि ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा सच्चा है, ऐ लोगों जन्नत का वादा सच्चा है, ऐ लोगों हौज़े कौसर का वादा सच्चा है, ऐ लोगों क़यामत के दिन जब कोई किसी का परेशान हाल ना होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर कोई एक दूसरे से भाग रहा होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, उस दिन प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का वादा सच्चा है। ऐ लोगों प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम की सोहबत का वादा सच्चा है। ऐ लोगों, जन्नतियों के लिए जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिलसिले में कोई भी धोखा देने वाली चीज़ तुम्हें धोखा में मुब्तला ना करे। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, ज़रूरत इस बात की है कि हम में से हर शख्स अपने आप से ये सवाल करे कि वो किस तरीके की गफलत की ज़िंदगी गुजार रहा है। हम में से हर शख्स अपने आप से ये सवाल करे कि वो किस तरीके की गफलत की ज़िंदगी गुजार रहा है। हम और आप गाफिल हैं किन चीज़ों से? हम और आप गाफिल हैं किन चीज़ों से? हम और आप गाफिल हैं हमारी मौत से, जो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर कहा कि ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम जहाँ कहीं पर भी रहोगे, तुम जहाँ कहीं पर भी रहोगे, दुनिया के जिस कोने पर भी रहोगे, मौत तुम्हें आकर ही रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि आरामदेह बिस्तर पर हमारी मौत आए। अरे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े बंगले बना लिए, सड़कों पर उनकी मौत आ गई। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े बागात बना लिए, खड़े खड़े उनकी मौत आ गई। तुम जहाँ कहीं पर भी रहोगे, मौत तुम्हें आकर ही रहेगी। और अल्लाह ने जहाँ लिखा है वहाँ से हटकर नहीं, बल्कि उसी जगह पर मौत आएगी। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे कहा कि वइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि आदमी कितने भी कमाल को पहुंच जाए, कितनी भी इज्जत कमा ले, कितनी भी दौलत कमा ले, कितनी भी शोहरत कमा ले, अपनी मौत को एक सेकंड के लिए भी टाल नहीं सकता है। मौत की जगह मुतय्यन है, मौत का वक्त मुतय्यन है। ज़रूरी नहीं है कि हम में से हर शख्स बूढ़ा होकर मरे, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम में से हर शख्स बीमार होकर मरे, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम में से हर शख्स किसी हादसे में ही मरे। अरे कितने ऐसे लोग हैं जो बैठे बैठे आजकल दुनिया से जा रहे हैं। और आजकल खुसूसन इस दौर में मौतुल फजआ यानी अचानक होने वाली मौतें, ज़रा तसव्वुर करें। आज हम और आप देखते हैं रोज़ाना मौतें हो रही हैं, मौतुल फजआ हो रही हैं, अचानक होने वाली मौतें। ज़रा तसव्वुर करें, अपने आप से पूछें कि अगर इसी हालत में मलकुल मौत हमारे करीब पहुंच जाए और हमारे रूह कब्ज़ कर ले, तो हमारे नाम अमाल में वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें लेकर के हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंच सकते हैं। इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर कहा कि इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिज़ून मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसन इल्ला इस्तमअूहु वहुम यलअबून लाहियतन क़ुलूबुहुम। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, आज हम और आप इस दुनिया की रंगीन गफलत में पड़े हुए हैं। आप यकीन जाने, आज हम और आप इस दुनिया की रंगीन गफलत में पड़े हुए हैं। कब्र के उस दबोचने से जिसका सामना हम में से हर शख्स को करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है और वो गफलत में पड़े हुए हैं। यकीन जाने हम और आप गफलत में हैं कब्र के दबोचने से। कब्र का दबोचना ये हक है, उसका सामना हम में से हर शख्स को करना है। हमें उसकी फिक्र नहीं है, हमें मौत की सख्ती की फिक्र नहीं है, हमें कब्र के दबोचने की फिक्र नहीं है। कब्र के दबोचने के बाद दूसरा मरहला
قبر کے اندر ہونے والے بہت بڑے فتنے کا مرحلہ ہے، سوال و جواب کا مرحلہ ہے، جس سے ہم میں سے ہر شخص کو گزرنا ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ فاسق و فاجر ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص سے اس کے قبر میں اس کے دین کے بارے میں، اس کے نبی کے بارے میں، اس کے رب کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ آج ہم اپنے رب کو کتنا جانتے ہیں؟ آج ہم اپنے دین کو کتنا سمجھتے ہیں؟ آج ہم نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا سمجھا ہے؟ یہ سوالات ہماری قبروں میں ہونے والے ہیں، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ دین سیکھیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ دین سیکھیں، عمل کریں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کو پڑھیں، اس لیے کہ یہ عذاب قبر یہ حق ہے، عذاب قبر یہ حق ہے، قبر کا عذاب ہونا یہ حق ہے۔ قبر کے اندر یا تو نعمتوں سے ہمیں لطف اندوز کیا جائے گا، یا قبر کے اندر ہمیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم اور آپ غفلت میں ہیں اس قبر کے عذاب سے۔ سوچیں، ذرا تصور کریں کہ آج ہم نے اپنی قبروں کو یاد کر کے کتنی مرتبہ رویا۔ آئے دن آج ہم قبرستان میں جاتے ہیں، میت لے جاتے ہیں، وہاں دفناتے ہیں، قبر کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ اگر قبروں کو دیکھ کر کے بھی ہمارا رونا نہیں آئے، ہمارے آنکھ سے آنسو نہیں آئے، تو پھر ہماری حالات کو کون بدل سکتا ہے؟ ہم غفلت میں ہیں، ہم غفلت میں ہیں اپنے قبر کی تاریخی سے۔ آج ہم اور آپ غفلت میں ہیں اپنے قبر کے ان بھیانک ایام سے جن سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے۔ آپ یقین جانیں آج ہم اور آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اور آپ آج غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری قبروں سے ہمیں ننگے حالات میں اٹھایا جائے گا، ہماری قبروں سے ہمیں ننگے حالات میں اٹھایا جائے گا، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، پیروں میں جوتیاں نہیں ہوں گی، اور جب ہمیں اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا تو کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 50,000 سال کے برابر کے ایک دن میں ہمیں انتظار کرتے کھڑا رہنا پڑے گا۔ ہم اور آپ اس دن کی مشقت اور پریشانی سے ہم اور آپ یقیناً غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وقت ہو چکا ہے، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اور آپ کے آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم دین نہیں سیکھتے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمیں دین سیکھنے کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ رب العالمین جو ہم میں بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں بے نمازی ہیں اللہ آپ انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں دین اسلام پر رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔